की है कंट्रीब्यूशन की, इसकी हम तायद करते हैं और अपनी जानिब से भी इसमें ताउन का ऐलान करते हैं। और सिर्फ एक दो बातें क्लैरिफिकेशन हासिल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये क्लैरिफिकेशन ये जानना चाहूँगा कि ये जो नोट दिया गया था, इस नोट के पेज नंबर 3 पर पूरी तफसीलात दी गई हैं कि कितना पैसा सर्फ हुआ 2014-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 और 2019-20, 2020-21 और फिर 2021 व 22 टिल 24 सितंबर तक, और मुकम्मिल इसमें फिगर दिया गया है 6,555.975। इसके लिए भी मैं मुबारकबादी देता हूं कि इतना हुआ। फिर पेज नंबर 4 पर मेजर अचीवमेंट्स बयान किए गए, जिसमें कितने लाख एकड़ फॉरेस्ट का भी तफसीलात पूरे दिए गए हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, पूरा है इस पेपर में। लेकिन मेजर अचीवमेंट्स के बाद 7th पॉइंट में यह कहा गया कि एज पर द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट हैज इंक्रीज्ड बाय 3.67% बिटवीन 2014 to 2017. Sir, in this paper, and I was hearing to the speech of Honorable Minister Saab and also Honorable Chief Minister Saab, because I'm not well versed and I do not really completely follow Telugu language. It was being translated. I might have not heard it. If I have not heard it, I would like to be corrected. At the same time, my question through you is that, sir, it has been said that 3.67 between 2014 and 17 has increased. Forest cover has increased. So I want to know what is the increase of forest cover from 2017 to 2021. And if we have to see, sir, one more small clarification, sir. If it is 3.67% from 2014 to 17, the amount spent from 2014 to 17 is 1,396. So what I assume and I understand is that after spending 1,396, we were able to achieve 3.67% of green cover area. So if we minus 1,396 from 6,555, that means the remaining amount is 5,159 crores. So if we go according to this 1,396, 3.67%, then that means for 5,159, we have covered now more than 6%. If I am right or wrong? I am right or wrong, I want to know, sir. So why am I saying is this, sir, that we have spent 6,000 crores and the survival rate as per the reply given by Honorable Minister Saab is 80 to 95%. If 95% is surviving or 80% is surviving, in the note we said that we want to achieve the target from 24% to 33%. So I think the amount of money that has been spent from 14 to 17 and then from 17 to 21, we should have been able to achieve at least 6 to 7%. So why have we not achieved that? Or somewhere something we have forgotten to mention, because I am not very learned or very much educated, I would say, sir, so I might be wrong. And at the same time, sir, the second clarification, sir. Honorable Speaker Saab, this book has been tabled, which says assembly constituency-wise forest area in Telangana state. Right, sir? All the details of all the constituency has been given, sir. Sir, I would like to ask through you to the Honorable Forest Minister is that
In Hyderabad, there is one constituency by the name Bahadurpura, where my colleague and my party represents in this house. And in that Bahadurpura constituency, sir, here it is written, Bahadurpura on page number 74, Bahadurpura constituency, Forest Division, Hyderabad, forest block, no forest area. Sir, again I would say, I am not that well read or well learned person, I might be wrong, but I would like to bring to the notice of this house and also to you, sir, in Bahadurpura constituency, we have a zoo, sir. We have a zoo. And the extent of the zoo is 380 acres, sir. Sir, almost 1,500 species of birds are there. Mammals and reptiles are there. Tiger is there. Lion is there. And it is a 200-year-old, sir. Tank is there, Miralam also. And here in this book it says, zero forest area. So I want to be corrected. Does the zoo come under forest cover area or not? Is it managed by forest department or not? Is the forest department responsible for zoo or not? If yes, then why has it not been mentioned here? So probably there might be some reason which I am not aware, but I would like to know the reason why it has not been mentioned here, sir. And also, sir, I would lastly request the Honorable Chief Minister Saab is that, sir, we need to create green cover के साथ मेरी आपसे दरखास्त ये है कि पार्क्स को भी हम अगर डेवलप करें तो इससे बहुत अच्छा होगा. आपने तफसीलात रखी है GHMC के बारे में, HMDA के बारे में. पुराने शहर में मैं खास तौर से आपसे दरखास्त करूंगा स्पीकर साहब के जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से कि पार्क्स को डेवलप करने के लिए लीजिए और नए नए जो एरियाज जो हम दे रहे हैं जहां पे जैसे कि फार्मा सिटी आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी है या जो भी एक्सपेंशंस आ रहे हैं, इन एरियाज में आप पार्क के वास्ते एक एरिया को रखिए, वहां पे एलोकेट करिए ताकि वहां पे पार्क डेवलप हो. जब वहां पे पॉपुलेशन आएगा, आबादी आएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा या फ्लैट्स आएंगे, कुछ भी आएगा, तो वहां पर एक ग्रीन कवर भी होना चाहिए. सर, शुक्रिया साहब. सबसे पहले जनाब अकबर साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने मेरे तजवीज़ का खैर मकदम किया और अपने पार्टी की तरफ से ताउन भी दिया. दूसरी बात यह है सर, जो भी फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का दिया हुआ नोट है, इस नोट को बनाते हम ज़रूर है. जो फिगर्स आपको दिए हैं 2014-17 का जो रिपोर्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फॉरेस्ट एजेंसी है, वो लोग नोटिफाई करते हैं, वो लोग मतलब डिक्लेयर करते हैं कहाँ कितना बढ़ा, कहाँ कितना कटा, जिस राज्य में, जिस रियासत में कटा, जिस रियासत में बढ़ा, वो लोग सर्टिफाई करते हैं, हम लोग नहीं करते. तो 14-17 तक तो जो हालात था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको नोटिफाई किया. उसके बाद का जो हालात हुआ, यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई, इसके रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बना रही है, वो 2022 में आने का आशंका है. उस समय में वो रिपोर्ट तफसील सामने आएगी. वो जो भी रिपोर्ट आएगा हम ऐवान में रखेंगे सब. दूसरी बात, जू बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, मैं भी इस बात को ज़रूर जानता हूँ, लेकिन जू नोटिफाइड रिजर्व फॉरेस्ट नहीं है. वहाँ जू रखा गया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसको मैनेज करता है. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वाइल्ड लाइफ भी एक विंग होता है सर, वाइल्ड लाइफ का एक अलग ऑफिसर भी होता है. वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के जो विंग होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तहत, उस ऑफिसर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमारा जू होता है. बट जू एज सच इज नॉट नोटिफाइड फॉरेस्ट एरिया, इट इज़ नॉट ऑफिशियली नोटिफाइड. वहाँ रखा गया, वहाँ चल रहा है, ये फॉरेस्ट पालन नहीं है. इसलिए कि साहब मैं आपको एक बात इसमें बताना चाहूँगा, सारे मेंबर्स के बेनिफिट भी होगा इसमें. इस नोटिफिकेशन में भी थोड़ा मतलब पीछे जो
नेहरू साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय का ये पूरे नोटिफिकेशन है। वो कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नोटिफिकेशन नहीं हुई, इसमें भी गफला है। अब जो रेवेन्यू का फॉरेस्ट का झगड़ा चलते रहता है, जो ट्राइबल का फॉरेस्ट का भी झगड़ा चलते रहता है, इससे कंपाउंड मल्टी नाटी इशू। वक्फा जमीन है, उसमें भी फॉरेस्ट वाला आके झंडा गाड़ देता है अचानक आके। 100 साल से 150 साल से अवकाफी जायदाद है, उसमें अचानक आके सर्वे करके बोलता भाई यहाँ तक फॉरेस्ट है। ये इसलिए हो रहा है, ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो नोटिफाई करे थे उस जमाने में, कुछ फाइनल नोटिफाई हुए, कुछ 50% यानी कि मतलब कुछ हद तक नोटिफाई होके वहाँ है, उसके बाद में कुछ नोटिफाई होते होते ऐसा रुके हुए हैं। लेकिन इसके बाद में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। इसी प्रकार का कुछ केस सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ये सारे राज्यों के मतलब सारे रियासतों के इकट्ठा करके एक नोटिफिकेशन ऐसा दे दिया कि जो भी नोटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू हुई है, ट्रीट दिस एज नोटिफाइड एंड दैट हैज बिकम द लॉ ऑफ द लैंड। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर में हमारे पास कुछ है ही नहीं। इस प्रकार का जजमेंट आया, उसके मुताबिक ये एक अजीब सा चल रहा है। लेकिन एक बात ज़रूर है अकबर साहब, इन चीज़ों में जब तक कन्फ्यूजन रहे, काफ़ी झगड़े होते रहेंगे, अननेसेसरली लिटिगेशन होता रहेगा, लोगों का नुकसान होता रहेगा, क्लैरिटी नहीं रहेगा। इसको किसी एक तरीके से हमको निकालना है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि जो मुकम्मल सर्वे तेलंगाना लैंड मास का मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो एक बार आ जाए तो काफ़ी चीज़ें, हमारे अवकाफी जायदाद बच सकता है, हमारे देवल मंदिर का ज़मीन बच सकता है, सरकारी ज़मीन भी बच सकता है, लोगों का भी ज़मीन बच सकता है। किसी ने नाजायज़ कब्जा किया हो कि गरीबों का, उनका भी, उन लोगों के साथ भी इंसाफ हो सकता है। तो एक मुकम्मल सर्वे हमारे लिए काफ़ी कुछ मदद कर सकता है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना का वजह से वो रुका हुआ है, वो कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी चीज़ें हल हो जाएगी। थैंक यू। Short discussion on Hartaram is over. బట్టి గారు, వీరయ్య గారు మాట్లాడారు కాబట్టి సార్ అది క్లారిఫికేషన్ సార్, ఇది వేరే. అధ్యక్ష, పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తెలంగాణ